जी कैंडिडेट 14 स्टार्ट करें। Okay. I have been provided with spot image of HSG of a skeletally mature female patient, frontal projection in which I can appreciate that contrast is given into the vagina. Contrast is seen to be opacifying the uterine cavity and the fallopian tubes. I can appreciate that there are multiple tiny outpoachings of the uterine cavity is on the right side. On the left side of the uterine fallopian tube are noted, and there is also a free splage of contrast is seen on the left side, and there is also free splage is seen on the right side. There is no any filling defect is seen. Visualized bones appears normal. Based upon these findings, my topmost differentials diagnosis include it can be a case of um, ischemica nodosa, or my differentials diagnosis include uh, uh, बताइए। tuberculosis or adenomyosis. Next, I will correlate with ultrasound findings, and I will refer the patient to the gynecologist for further its management. ओके, आपने इसको इस्तेमिका नोडोसा बनाया है, राइट? जी ठीक है। और कोई कंप्रेशन इफेक्ट लग रहा है आपको यूट्रस पे? जी मैम, there is a mild compression effect seen on the left side of a uterine cavity. ठीक है, अब वो किस वजह से हो सकता है? Maybe it is due to fibroid. ओके। और एंडोमेट्रियल कैविटी में कोई डिस्टॉर्शन लग रही है आपको? Ma'am, there is a mild distortion at the left side of the uterine cavity. ठीक है, तो वो किस वजह से हो सकती है? मैम, टीबी में भी हो सकती है, एंड इस्कीमिका नोडोसा में भी हो सकती है थोड़ी सी, एंड और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी में भी हो सकती है. फैलोपियन ट्यूब्स को इन्वॉल्व करेगा ना? मैं आपसे पूछ रही हूँ एंडोमेट्रियल कैविटी की बात कर रही हूँ ना? Oh, okay. Okay, yes, yes. Ma'am, it can be due to fibroid or endometrial carcinoma. ठीक है। और इसके अलावा कोई और फाइंडिंग? Uh, ठीक है, Ma'am, आपने I think there is a dilatation of the bilateral tubes is seen, so it is likely hydro. ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कुछ करना चाहती हैं? Ma'am, it can be a TB sulfangitis or and leading to hydrocephalus, sorry, hydrosulfings, and yes, so it can be a case of a tuberculosis. सही, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका केस ये है, बताइए। Okay. I have been provided with multiple images of X-rays, X-ray skull lateral view, and the X-ray spine lateral image, and the X-ray hand frontal projection, in which I can appreciate there is a mild increase in the bone density is seen, and there is mm, there is a Warmian bones are seen within the skull, and there is a widening of the cilia turcica is seen. And in the lateral spine, X-ray spine, I can appreciate that there is a mild anterior scalloping is seen in the vertebral column, and hands are seen to be short hands, and there is no any evidence of cupping or flying. And there is also a champagne glass pelvis is seen. So based upon these findings, it is likely the case of achondroplasia. My differentials diagnosis include mucopolysaccharides.
Next, I will like to do the skeletal survey of this patient, and I will refer the patient to the pediatrician for further management. ठीक है, और कोई डिफरेंशियल जहन में आ रहे हैं इन दोनों के अलावा? Mm, अच्छा, मुझे पता है वर्मियन बोन्स के क्या क्या डिफरेंशियल्स हो सकते हैं? Ma'am, pycnodiastasis and हम्म, osteopetrosis, achondroplasia, and craniocaudal caudal dysplasia, and osteogenesis हम्म, imperfecta also. हम्म। आपका ये जो फोर्थ इमेज है, इसमें आप फेमरल एपिसिस नजर आ रही है आपको? No, ma'am. ठीक है, तो फिर कुछ जहन में आता है? Ma'am, it can be a case of a craniocranial dysplasia, but I would like to see the chest X-ray to see the absent मैं clavicles. दिखाती क्लेविकल्स Um, दिखाती ना, वो तो मैंने नहीं दिखाया। जी ठीक है, नेक्स्ट केस करते हैं, सही है, गुड। जी. केस 3 करें। Okay, I have been provided with a spot image of a mammogram, right breast, CC view, and the focused zoomed image, like magnified view, in which I can appreciate that there are multiple calcific densities, tiny calcific densities are noted, which are involving the left breast, and they are scattered throughout the breast, and they are seem to be projecting towards the nipple, and there is no any definite lesion is seen. There is no any architectural distortion is seen. No nipple retraction or skin thickening is noted. Um, so based upon these findings, my differential diagnosis include plasma cell mastitis. And however, I would like to see the other images of this breast, like MLO view, and I will do ultrasound correlation, and then keep the patient on follow up. ओके, व्हाट काइंड ऑफ कैल्सिफिकेशंस आर दीज, बिनाइन है या malignant है? It looks like benign. They are in linear shape. ठीक है, कोई बिनाइन की 3 एग्जांपल्स दे दें उनकी टाइप्स की, और जो सिनिस्टर होती है उनकी 3 एग्जांपल्स दे दें। Ma'am, muscular calcifications are benign calcification, and linear calcifications, and amorphous calcifications, and macro calcifications are benign. ओके, और malignant? And when popcorn calcification is also benign calcification, and in the malignant uh, coarse calcifications, and pleomorphic calcifications. ओके, प्लाज्मा सेल मेस्टाइटिस में जो कैल्सिफिकेशंस आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको कोई नाम होता है? Ma'am, linear calcifications. अच्छा, ठीक। Cigar तो shaped calcifications भी कहते हैं उनको. क्लियर होती है वो तो सस्पिशियस भी हो सकती है ना? जी. ठीक है, आपका टाइमर हो गया खत्म। नेक्स्ट जो है कैंडिडेट लेक्सी, वो आ जाए प्लीज, उन्होंने बोला है कि वो अटेम्प्ट करना चाहती हैं। मैं आ जाऊं। नहीं, आप में आ जाओ, बात में लेक्सी आ जाए। जी मैम। हाँ, उन्होंने अभी चैट में बोला ना, कहती है कि मैं अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। जी मैम। लेक्सी।
Yes, ma'am. जी सॉरी, थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू हो गया था। अच्छा, कैंडिडेट लेक्सी जो है वो आ गई है, तो फिर हम उनसे जी, स्टार्ट ma'am. करते हैं। Yes, ma'am. जी स्टार्ट करें, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। So I'm provided with the MRI pelvis, axial and coronal sagittal section. I can appreciate a distended endometrial cavity with intermediate on T1 and high on T2 um, signal intensity. An irregular growth is an irregular abnormal signal intensity growth is identified in the cervix, extending into the proximal vagina and into the endometrium. So my diagnosis would be cervical carcinoma. ठीक है, आगे। I can appreciate this on axial images, this growth indenting the urinary bladder. Uh, so this would be stage 4. गुड। I'm looking for any lymphadenopathy. तो व्हाट नेक्स्ट? I would recommend for the staging CT chest and abdomen. ओके। Madam, this endometrial cavity is the accumulation of blood product within the endometrial cavity due to this cervical growth. गुड। ब्लड प्रोडक्ट है या फिर वो फ्लूइड है? It may be fluid collection because it gives intermediate signal on T1 ओके, or ठीक है। नेक्स्ट आप सीटी स्कैन करवाना चाहती हैं, राइट? G and biopsy. सही। नेक्स्ट केस आपका। So I'm provided with the CT chest, axial and sagittal section. I appreciate large, multiple large cystic areas
with pneumothorax, and this appears an skeletally immature patient. So my differential include the pleuropulmonary blastoma, but no, this could be a congenital CCAM, and it resulting in the displacement of the mediastinum towards the right side, and the pleuropulmonary blastoma could be its complication. Okay. So, And I also appreciate a chest tube in the left hemithorax. chest tube क्यों है? Madam, can you repeat your question? Why is there chest tube present? I think this would be due to pneumothorax, but it is a minimal. Um, So is pneumothorax there or not? it is present in on the left side. Pneumothorax is present on the left side. Okay, if this is CCAM, then can you tell me the type? It is a type 1. Large cystic cancer. Type 1 is greater than 2 centimeter. What would be the treatment option in this particular case? I think we should go for the surgical resection, lobar resection, because it is compressing the mediastinum towards the right side, and it might causing the symptoms. Okay, your next case. So I'm provided with the MLO view of the mammogram, and I can appreciate a soft tissue density in the retroalular region with the skin thickening and nipple retraction. I want to look for any pleomorphic calcification, but unable to appreciate it any. And the given images shows no any enlarged lymph node. So I would categorize this lesion as Barrett's 4, and I would recommend biopsy. Because it appears speculated margins of the lesion, and a slight architectural distortion also. So you will say Barrett's 4. Which category? Yes, Which madam. type? Which type? 4C. Okay. Can we appreciate any other lesion? Yes, ma'am. A small density lesion is just anterior to the pectoralis muscle. Okay, what would it be? It could be a satellite lesion. Okay. So what next? Next, I go for the staging workup, CT chest with contrast, and abdomen. So I think this is there is possibility of MATS because of this satellite lesion, and I would also recommend bone scan for bony metastasis. What is Barrett 6? Barrett 6 is a biopsy proven breast carcinoma. Okay, and what is Barrett 0?
Bharat Zero is inconclusive, where we required additional imaging like any other mammographic, particular mammographic view or ultrasound. अब इस लीजन की आप क्या करोगे? बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी करोगे, इंसिजनल बायोप्सी करोगे? व्हाट विल यू डू? True cut biopsy. ठीक है, आपका टाइमर हो गया खत्म। थैंक यू। Thank you, नेक्स्ट madam. कैंडिडेट, नेक्स्ट कैंडिडेट है फातिमा। फातिमा आ जाए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सलाम फातिमा। आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं और फिर केस जी स्टार्ट। I've been provided with multi-planar images of the MRI of pelvis. Okay, so on the sagittal images, I can appreciate that the cervical canal is distended. The vagina and the cervical canal are distended. Can I know the age of the patient? यस 17 years। Okay. So the vagina and the cervical canal are show hyperintense signal on T2, which means that they are fluid filled. There's no grading of the signal intensity to suggest any blood products within this region. The uterine cavity itself is not very distended. Apart from that, I'm trying to look for the ovaries. I cannot appreciate any gross adnexal pathology on this on these images. And so on the basis of these findings, I would also correlate with the patient's history. My diagnosis on the basis of these findings would be hydro hydrometria. No, because the uterine cavity is not distended, so hydrocolpus. And if there is history of amenorrhea, although I'm not seeing blood products, they could be hematometria as well. And I would refer this patient for gynecological evaluation to look for any site of obstruction, which most commonly is an imperforate hymen and can be surgically corrected. इनका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है हमारे पास, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि राइट किडनी एब्सेंट है। So, if the right kidney is absent, I am looking for any malignant abnormalities in this patient. I cannot appreciate uh, any abnormality of the uterine cavity. ओके, आप जो फर्स्ट एक्सेल सेक्शन है उसको देखो, उसके ऊपर जरा गौर करो आप थोड़ा सा। And I can appreciate two hyperintense signal areas bilaterally, which could गुड। represent two horns of the uterus. However, I would like to confirm this on corneal images. I cannot appreciate those two cavities on the corneal images. कॉर्नल इमेज थोड़ा सा नीचे का है, वो यूट्राइन कैविटी का नहीं है, वो वेजाइना का दिखाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, Okay, so if this is a bicornuate uterus and the division between the two cavities is extending down to the vagina, and there is renal agenesis, then I am suspecting uh, uh, um, I cannot recall the name of that syndrome. ओके। But in that there's completely divided uterine cavity, cervix as well as the vagina, and it is commonly associated with renal agenesis. ओके, नेक्स्ट केस।
I've been provided with the X-ray of a skeletally immature patient. I can see multiple chest electrodes and डॉक्टर फातिमा, NG tube. आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। Yes, ma'am. I've been provided with the frontal chest radiograph of a skeletally immature patient. I can appreciate multiple chest electrodes and NG tube is also in situ. Another linear opacity below the level of diaphragm likely represents a umbilical vein catheter. So in this, I can appreciate that the cardiac size is mildly enlarged, and the right heart border is slightly larger than normal. There are multiple granular opacities noted in both the lung fields, which appear as hyperexpanded. So I am suspecting either transient tachypnea of the newborn in this patient with the differential of respiratory distress syndrome. Has the फातिमा, मैं patient कह रही थी, आपने भी बोला ना कार्डियक साइज अपीयर्स टू बी एनलार्ज्ड, Yes, ma'am. तो फिर उसके ऊपर रहते हैं ना। The cardiac size is enlarged with the apex pointed slightly upwards. So this could represent a trilogy of Fallot in this patient. Uh, mm, Other कोई हिस्ट्री लेना चाहती है? yes, ma'am. Please. नहीं, आप खुद बताना किस चीज में हिस्ट्री लेना चाहती Does the patient have cyanosis? है? यस, साइनोसिस। So this is showing the appearance of a boot-shaped heart, and my primary diagnosis would be that of the etiology of Fallot in this patient. ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? Ma'am, next we can assess this patient. We will do an echocardiography, and we can assess this patient for a Blalock Lucid shunt. सही। और कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं जो साइनोटिक हार्ट डिजीजेस होती हैं? And transposition of great arteries उसमें mediastinal thinning हुई होती है. Other than that, we have वो सब और उसमें the shape of the heart is typical for TOF, so I'm thinking along those lines. ओके, योर नेक्स्ट केस। I have been provided with sagittal and axial section images of the abdomen and pelvis. I can appreciate that the uterus is anteverted in position and there is a large circumscribed density at the level of fundus of the uterus, which shows internal dystrophic calcifications. There is some free fluid in the pelvis as well in the on the right side and anterior to the uterus as well. The rectum is pushed posteriorly. However, I can see some air locules at the level of the vagina. So the uterine mass is likely a large uterine fibroid which is calcified, and the hypodense appearance of the cervix and air locules within the vagina are noted, which raises suspicion for any fistulous communication between the rectum and the cervix. तो However, I cannot appreciate कोई नॉर्मल फ्लूइड है या उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है? density. ये normal ascites से ज्यादा है. नॉर्मल साइटिस से ज्यादा है, तो फिर क्या हो सकता है ऐसा? And this यूट्रस could इतनी represent लार्ज है, उसमें इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, क्या हो सकता है? and dense ascites. My primary differential in that case would be hemorrhage. क्या हुआ है? And hemorrhage could cause dense ascites. हेमरेज किसने किया? हेमरेज ठीक है फातिमा, आपका टाइम खत्म हो गया। ठीक है,
अब हम सारे केसेस देख लेते हैं, सही है। ठीक है मैम। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम केस 1 और सारे जो है वो आ जाए सामने। पहला केस बताइए जी, इसकी सारी फाइंडिंग्स बतानी है, ठीक है। एक डायग्नोसिस देके चुप नहीं करना, जिसने लिखनी है सारी फाइंडिंग्स लिखनी है, बताएं चैट में, या कोई बोलना चाहते हो तो फटाफट बोल के बता दो। मैडम इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड बायलैटरल फैलोपियन ट्यूब्स हैं, सस्पिशन मुझे एडिनोमायोसिस का भी है, और इसमें मुझे कंट्रास्ट इंटरवेंशन की भी सस्पिशन लगा है। वेरी गुड, तीनों बातें आपने बिल्कुल ठीक बताई है, ठीक है। ट्यूबल ब्लॉकेज है, और एडिनोमायोसिस है, और इंट्रावजेशन ऑफ कंट्रास्ट है। और ये जो मैस इफेक्ट आ रहा है लेफ्ट साइड पे, वो क्यों है? थोड़ी सी पुष्ट है ना यूट्रस, जी मैडम, एंडोमेट्रियल। ये एडिनोमायोसिस के साथ एंडोमेट्रियम वो भी हो सकता है, इसका एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है कोई तल। ठीक है, या कोई मैस हो सकता है, कोई भी मैस फाइब्रॉइड हो सकता है, ठीक है। तो वो उसको पुश कर रहा है टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। ये एडिनोमायोसिस का फोकस हो गया। ये सारे के सारा जो है वो ब्लॉक ट्यूब्स है, ठीक है। और ये जो है दैट इज कंट्रास्ट इंट्रावेजिशन, ट्यूब्स ब्लॉक है ना, तो इसलिए कंट्रास्ट आगे गया ही नहीं, ठीक है जी। सबने ऑलमोस्ट ठीक आंसर लिखा है इसका, ठीक है, वेरी गुड। केस 2 बताएं भी इसका डायग्नोसिस। मैडम बुलेट शेक वर्टिब्रा है, कुछ वीकिंग इंफीरियर एंड पे हो रही है, डायलेटेड वो है, मेटाकार्पल्स है, प्रॉक्सिमल टेपरिंग है, और मुझे इसकी सस्पिशन म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस की सबसे ज्यादा लग रही है। और इसके अलावा मैम स्कैपुलोसेफली भी। एपिफिसिस की बात आपने की है, तो मल्टीपल एपिफिजियल डिस्प्लेजिया भी हो सकता हम्म, सही। और कोई देना चाहे इसमें? है। एक्सरे स्कल न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस नजर आ रहा है? मैम टाइप 1। एक्सरे स्कल में क्या नजर आ रहा है? जे शेप वर्नियर सेल। बोन। मैम एलोंगेटेड स्कल है, हम्म जे शेप सेल है, हम्म और मैम पोस्टीरियरली शायद जूम करूं तो मैम वर्मियन बोन्स भी है। हम्म, और ठीक मैम है। जो हैंड्स हैं उसमें मैडम मेटाफिसिस की लेयरिंग तो नहीं वैसे लग रही, पॉइंटिंग भी नहीं है। और मैम बुलेट ठीक, शेप्ड वर्टिब्रा आ गए हैं। मैम म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। नहीं ये वो केस नहीं है, ठीक है। वर्मियन बोन्स मोस्टली आपने इसमें एमपीएस में इतनी पड़ी नहीं है ना। वर्मियन बोन्स, या जब मैंने एपिफिस की तरफ इशारा कर दिया कि एपिफिसिस देखो नजर ही नहीं आ रही ना, बनी ही नहीं है उसकी, ठीक है। तो एक हिना जो है उन्होंने बताया है कि दैट इज अ केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ये कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, ओके। शॉर्ट स्टबी हैंड्स हैं, फेमोरल एपिफिसिस नहीं है, और ये जो लेटरल है ना, इसमें हाँ जी बिल्कुल बीकिंग का सस्पिशन होता है, लेकिन एक्चुअली वो बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो इंटरवर्टिबल डिस्क स्पेसेस है ना वो ज्यादा हो गई हैं, उनकी मतलब लेंथ ज्यादा हो गई है, ठीक है। और स्कल में वही वर्मियन बोन्स आ रही हैं, और जे शेप सेल आ रहा है। हाथों में शॉर्ट स्टबी हैंड्स है, और ये जो एक्सरे पेल्विस है इसमें जो है वो एपिफिसिस बनी ही नहीं है। दैट इज द केस ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। आज जाके इसके 2-3 और केसेस देखे रेडियोपीडिया से, तो फिर इंशाल्लाह और अच्छा समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट केस जो है उसमें क्या है, कौन सी कैल्सिफिकेशन है ये? लीनियर ब्रांचिंग। मैम ये सेक्रेटरी। मैम ये ठीक है, लीनियर ब्रांचिंग है, हाई सस्पिशन है 4B4C। बिल्कुल ठीक है। तो ये प्लियोमॉर्फिक कैल्सिफिकेशंस हैं। कैल्सिफिकेशंस वो मोस्टली दिखाते हैं मैमों पे, ठीक है। तो ये आपने उसको देख लेना है, सारी टाइप्स उसकी देख लेनी है अच्छे से। सस्पिशियस वाली वो मोस्टली यही होती है, प्लियोमॉर्फिक ब्रांचिंग, ठीक है ना, लीनियर ब्रांचिंग, इस तरह से करके। तो दैट इज अ बायरेट्स 4,
इसको हम प्लियोमॉर्फिक सस्पिशियस कैल्सिफिकेशंस करेंगे और इसकी वो स्टेरियोटिक्टिक बायोप्सी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस का डायग्नोसिस बताइए। CS सर्विस। सीए सर्विक्स, यस वेरी गुड। वो सबको पता चला ना सीए सर्विक्स है, लेकिन फिर हमने उसको साथ पूरा वो बताना है ना कि क्यों है, कि मतलब इसके साथ हमें जो आई मीन क्यों तो नहीं, मतलब इसके साथ जो बाकी फाइंडिंग्स है एसोसिएटेड, कि हाइड्रोमेट्रा हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंडेड एंडोमेट्रियल कैविटी है, फिर स्टेज 4 बन गया है बिकॉज ब्लैडर वॉल जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, पोस्टीरियर वॉल उसकी, ठीक है, और फिर हमने उसको घर तक छोड़ के आना है। तो इसमें वो आपसे, उसको भी पता है कि आपको पता है कि ये सीए कैंसर, सीए सर्विक्स है, लेकिन वो बाकी सारी बातें आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। एसोसिएटेड फाइंडिंग्स आपने साथ लाजमी बता देनी है। अच्छा ये मैम सी क्या? यस, सीकैम है टाइप 1, और इसमें निमोथोरेक्स साथ नजर आ रहा है, चेस्ट ट्यूब भी डली हुई है, तो वो आपने खुद ही से बता देना है जल्दी से, ठीक है, क्योंकि फिर जब आसान केस आया है तो उसको हमने पूरे का पूरा जबरदस्त स्कोर करना है उसमें। और फिर ऑब्वियसली उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया था मैनेजमेंट कि इसकी हम लोबार रिसेक्शन करेंगे, लोबेक्टमी करेंगे, बिकॉज इट्स बीइंग सिम्टोमेटिक, इतनी ज्यादा मीडियास्टिनल शिफ्ट करवा रहा है, कॉन्ट्रालैटरल निमोथोरेक्स हो गया है, तो कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है ना। ओके, केस नंबर 6, बायलेट्स बताइए। 5. यस, 5। स्पिकुलेटेड मार्जिन है, हाई डेंसिटी है, सेटेलाइट नोड्यूल आ गया, सीधा सीधा बायलेट्स 5, ठीक है। 4 वाली उसमें खर्च में हम घुसेंगे ही नहीं, ठीक है। केस नंबर 7, Harlan Werner Wonderlich syndrome. या बिल्कुल सही है। तो ये ओवीरा सिंड्रोम है या हर्लिन मेयर वंडरलिच सिंड्रोम, ठीक हो गया। इसमें हमें क्या नजर आ रहा था कि यूट्राइन डायडेल्फिस है, ठीक है, और डिस्टेंडेड जो है वो यूट्राइन कैविटी और वेजाइना है, और जो कोरोनल सेक्शन था ना उसमें वेजाइनल सेप्टम भी दिखाया गया है, ठीक हो गया। तो ये हमने इस तरह से सारी बात बता देनी है उनको, और जब वो हिस्ट्री के साथ कोरिलेट हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं बची। तो दैट इज अ केस ऑफ ओविरा सिंड्रोम, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड हेमीवेजाइना एंड इप्सिलैटरल रीनल एजेनेसिस। और डॉक्टर खजर ने इसका दूसरा नाम बताया हर्लन वर्नर वंडरलिच सिंड्रोम, ठीक हो गया। ये मैंने टोक्स का जब लिया था ना आप लोगों को सेशन, तब भी ये केस दिखाया था। ओके, नेक्स्ट केस क्या है। PGM। Transposition of great arteries. AGMM, egg on string appearance. एगॉन स्ट्रिंग, ठीक है, एगॉन साइड, एगॉन स्ट्रिंग, नेरो Increase vascularity in neuromediastinum. या एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपने वो तो देखो ना, अब साइनोसिस की हिस्ट्री है, वो 3-4 ही हार्ट बच गई डिजीजेस, 3-4 में से भी वो कुछ के स्पेसिफिक साइंस हैं, तो उनको हमने देख लेना है और फिर हमने उनको नैरो डाउन कर देना अपने डिफरेंशियल्स को। अच्छा कह रही विटानल सेप्टम को मार्क करते हैं, मैं दिखाती हूँ, ये ना, ये देखें, ये विजाइनल सेप्टम है ना, मैंने उनको बताया था कैंडिडेट को कि ये विजाइना के लेवल पे, तो दिस इज विजाइनल सेप्टम, सही। नेक्स्ट कीजिए, हो गया बिल्कुल ठीक है। और 9th केस बताइए। Calcified fibroid. Calcified fibroid torsion with rupture and hemorrhage. यस, दैट इज अ केस ऑफ रप्चर्ड फाइब्रॉइड, ठीक है। तो इतना बड़ा फाइब्रॉइड था और उसमें डिजेनरेशन भी थी जो उसके पहले वाले इमेजेस में थी, लेकिन अब वो कैल्सिफिकेशंस के तौर पर सामने आ रही है, और फिर वो रप्चर हो गया। और रप्चर जो है वो यहाँ से अगर आप ट्रेस करो इसको, आ, ये ये यहाँ पे देखिए आपने यूट्राइन वॉल कितनी ज्यादा जो है वो हल्की सी हो गई है, ठीक है, और डिफेक्ट सा भी लग रहा है, जबकि नीचे देखें ये कितनी थिक है, सही है। तो यहाँ से ये रप्चर किया और ये सारा इसका फ्लूइड जो है वो हेमरेजिक फ्लूइड हो गया। तो दिस इज अ केस ऑफ रप्चर्ड फाइब्रॉइड, ओके। Thank you, madam. एनी क्वेश्चंस। थैंक यू डॉक्टर गजर। अभी आज मैम हमारा लास्ट CS सेशन सर्विक्स में नेक्स्ट क्या करवाएंगे? जी। CS सर्विक्स में नेक्स्ट क्या करवाएंगे स्टेज 4 में? वो जो सारी चीजें होती हैं कि स्टेजिंग सीटी हमने करवा लेना, ऑब्वियसली हम इसको रिमूव भी करेंगे, साथ कीमो रेडियो भी देंगे, ठीक है। तो मतलब वही बात है जो प्रैक्टिकली हम करते हैं, हमने वो सब कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एंड पे सिर्फ 2-3 मिनट लूंगी, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगी। मतलब अभी जो मैंने ये सेशंस लिए हैं
इनकी रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल कर दूंगी यूट्यूब पे, ठीक है। वो मैं आपका लिंक शेयर करूंगी, वो आप देख लीजिएगा वहां से, जिनका मिस हो गया है। दूसरी बात है कि अगर आप लोग ऐसे मजीद सेशन चाहते हो ना, तो बेशक फ्री सेशन होंगे, ठीक है। तो वो फिर आप मैसेज कर दीजिएगा फाइनल बैटल वाले ग्रुप में कि और करवाएं। और अच्छी बात यह है कि 2-3 और मेरे कोलीग्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने कहा है कि वो भी वॉलंटियर करना चाहते हैं और इस तरह का लेक्चर लेना चाहते हैं, तो मैं उनको फैसिलिटेट करूँ, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर वो इस प्लेटफॉर्म से आपकी हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जी और मैडम, ये रिक्वेस्ट है कि आप ये ना ज़रूर कंटिन्यू रखें। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट, वादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मतलब ये 7 सिस्टम्स कंप्लीट हो गए हैं ना, तो टाइम अवेलेबिलिटी देख के और आप लोगों का अच्छे से रिस्पॉन्स देख के मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसी तरह का एक वाइवा प्रैक्टिस सेशन जो है वो दोबारा से ले लें, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स रह गए जो नहीं बोल सके, और जितने इमेजेस आंखों से गुजरे उतना अच्छा होता है ना। तो अब नेक्स्ट पता नहीं कब मुलाकात हो, लेकिन इसमें ये है कि जो लोग अभी लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम मिलके दुआ कर लें, जब इतने सारे लोग मिलके दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला सुनेंगे ना। बाकी जो लीव करना चाहता है अभी, वो लीव कर दे। और ये है कि फाइनल बैटल ग्रुप में आप लोगों ने जरूर जो है ना वो अपने कमेंट्स देने हैं, अपनी सजेशंस देनी है और फीडबैक देना है, ठीक है। अच्छा, आप जो दुआ करना चाहते हैं ना, अगर तो उनके पास पानी है तो आधा ग्लास पानी प्लीज अपने हाथ में पकड़ लें। अगर पानी है आपके पास तो आप आधा ग्लास पानी प्लीज अपने साथ रख लें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप को अपने अल्लाह के सामने पेश कर दें। एग्जाम में तभी पास होना है जब हमने सरेंडर करना है। अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान, सारे केसेस, सारे ब्लंडर साइड पे रख के पूरा ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करें। अपना ध्यान अपने सांसों की तरफ ले जाएं, तो कुछ ही सेकंड्स में आपका ध्यान अपने अल्लाह की तरफ हो जाएगा। वो अल्लाह जो आपसे बहुत करीब है, 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करता है आपसे। आप अल्लाह कहते हैं, उसे अल्लाह कहें, गॉड कहते हैं, गॉड कहें, भगवान, जो भी आप कहते हैं, आप बस उसको महसूस करें अपने अंदर। वो आपको देख रहा है, आपकी तकलीफ को वो महसूस करता है, वो जानता है, आपकी स्ट्रगल्स को देख रहा है। हर तरफ रहमत ही रहमत है, नूर ही नूर है, आप है और आपका अल्लाह है। अब उन सब लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया, आपको परेशान किया है, आपको तकलीफ दी है, बचपन से लेके अभी तक आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया है। तो उन लोगों को जहन में लाएं और एक एक करके अपने अल्लाह के लिए माफ करते जाएं। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया वो भी अल्लाह के बंदे हैं, बस वो शैतान के बहकावे में आ गए और आपको परेशान कर बैठे, आपका दिल दुखा बैठे। तो अपने अल्लाह के लिए उनको माफ करते हैं। माफ करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया ना, तो अपने अल्लाह के लिए उनको माफ करते हैं। करबला से ज्यादा बुरा तो किसी के साथ नहीं हो सकता ना। तो फिर भी हमारे नबी ने हमारे लिए दुआ ही की, अपनी उम्मत के लिए दुआ ही की, और उस उम्मत में यजीद भी थे और सारे वो बुरे लोग भी थे। अब आपने सबको माफ करके इतनी नेकियां कमा ली हैं कि इसका हिसाब फरिश्ते भी नहीं कर सकते। अब उन लोगों का सोचें जिनका दिल आप दुखा बैठे हैं। हम भी इंसान है ना, हमसे भी गलतियां होती हैं। तो कितने लोग होंगे जिनका दिल हम भी दुखा बैठे हैं, जाने अनजाने में परेशान कर बैठे हैं, और वो लोग दूर नहीं है, हमारे आसपास ही हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे इन लॉज हो सकते हैं, हमारा स्पाउस हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे बहन भाई अम्मी अबू, जिनको हम गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। तो अपने अल्लाह से कहें कि अल्लाह उन सबका दिल मेरे लिए नरम कर दे कि वो भी मुझे माफ कर दे, और मैं एज कंपनसेशन जो है वो अपनी नेकियां आपको और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश करता हूँ, करती हूँ।
तो आप इनमें से जितनी चाहे उन लोगों में बांट दें जिनका मैंने दिल दुखाया। अब आपने सबको माफ भी कर दिया है, आपने माफी भी मांग ली है। आप और आपका अल्लाह है। अपने छोटे से छोटा बड़े से बड़ा गुनाह लेके अपने अल्लाह के सामने पेश हो जाए बड़े फख्र के साथ। ऐसे नहीं जाना कि मतलब ये क्या मतलब, आप रहमान के सामने बैठे हैं ना, तो आपने उसकी रहमानियत को पुकारना है। तो अपनी ये गुनाहों वाली सीवी लेके जाएं कि हाँ जी अल्लाह ने ये छोटा गुनाह भी किया तो ये बड़ा भी किया है, तो अब आप देख लें फिर है। अब आप तो रहमान है, आप कहते हैं तो बस फिर अब आप करें माफ। अल्लाह ताला की गोद में सर रखते हैं, 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो सब आपके स्ट्रगल देख रहे हैं। पार्ट 2 के लिए किस किस मुश्किल हालात में आप फंसे हुए हैं। बच्चा बीमार है, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब पे भी जाना है, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर है कि पास ही नहीं हो रहा। वो सब आपकी स्ट्रगल्स देख रहा है, सब आपकी मेहनत देख रहा है। कुछ भी रायगा नहीं जाएगा, अपने टाइम पे जब होना होगा होगा। आप बस अपने अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें और उससे मांगे कि गोद में सर रखें और उससे कहें कि अल्लाह मियाँ बस अब आप देखें सब चीजें, मैंने तो जो करना था कर लिया। अब बहुत प्यार से दिल में 3 दफा अल्लाह कहें, अल्लाह को उसके जाती नाम से पुकारें। होंठ हिलाए बगैर बंद आंखों के साथ दिल में 3 दफा अल्लाह को बुलाएं। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। अब अगर पानी आपके पास पड़ा है तो बंद आंखों के साथ ही पानी वो 3 सांसों में पी लें और फिर आंखें खोल दें। अब बस अब आप लोग रिलैक्स करें, सारी टेंशन आपने अपने अल्लाह ताला को पकड़ा दी हैं। तो बस आप लोग मजे करें, चिल करें और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो नेक्स्ट सेशंस अगर अरेंज हुए तो इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं, नहीं तो जब आपको कंसल्टेंट मिलके मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ जी मैडम पास हो गया, तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।